both are different aspects. One is to fight the disease and come out of it. Second is like you do a challenge. Cancer is a dreadful disease. It has got lot of fear among the people. And it is fatal also. Immediately मुझे शुरू करना पड़ा because it was stage 4 तो doctors बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी आप treatment start कर लो. And it was very painful. After the treatment, I started training for Ironman. After I was cleared of cancer, November 2021 में I was cleared of cancer. First time in my life I did 21-kilometer run. First time in my life I started swimming 100 meters, 200 meters, 300 meters जितना भी हो. पहले तो 100 meters करना भी बहुत मुश्किल था. तो इन लोग अच्छी टेक्निक हमें सिखाते थे. 2 kilometers I was like completely exhausted. तो मुझे एक्चुअली लगा यार अभी बंद करके चले जाओ, मेरे से होगा नहीं. वेरी टायर्ड. मतलब 8 घंटा कंटिन्यूसली एंड दैट इट वाज वेरी हॉट. पूरा एनर्जी चले गया. लेग्स आर क्रैम्पिंग. You can't move an ounce. मतलब एक मीटर भी आगे नहीं बढ़ सकते. I was very tired and just sat by the side. फिर मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली मैं आयरनमैन बनना इतना चाहता था कि मेरे बच्चों ने 2 टी-शर्ट्स बनाए थे. माय पापा इज आयरनमैन, माय फादर इज आयरन करके टी-शर्ट पहन के दे वर वेटिंग एट द फिनिश लाइन. तो मेरे मन में ये आ गया कि यार ये दोनों मेरे लिए वेट कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि मतलब अभी आके मुझे इधर रोकना चाहिए. कुछ भी हो, ये लास्ट 2 किलोमीटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय लाइफ बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर मी. तो उनको वो लोग खुश हो जाएंगे कि यार मेरा पापा ने आयरनमैन किया, मेरे पापा आयरनमैन. तो फिर मैं उठा वहां से उठ के मतलब जस्ट हैड दैट थॉट इन माय माइंड एंड आई स्टार्टेड रनिंग वेरी फास्ट. Prepare yourself for one of the most powerful stories of survival, resilience, and sheer human will. I am Bhakti Kothari from Indian Masterminds, and today we're sitting down with a true warrior, IPS officer Nitin Valsan, a man who faced down not only the unforgiving demands of his role in law enforcement, but also the terrifying reality of stage 4 cancer. But here's where it gets even more interesting. Nitin didn't just survive, he went on to accomplish the near impossible. He conquered the grueling Ironman triathlon. From chemotherapy sessions to 140-mile races, his journey has been nothing short of epic. Imagine battling crime as a DCP with the Delhi police, enduring the fight of your life against cancer, and then, as if to prove there's no limit to human endurance, crossing the Ironman finish line. What kind of strength, what kind of mindset does it take to pull off such a feat? Today, Nitin opens up about his darkest days, the moments that nearly broke him, and the fierce love and support that carried him through it all. This isn't just a story of triumph, it's a testament to courage that goes beyond what most of us can even imagine. So, buckle up for a conversation that will leave you breathless and inspired. Welcome to our channel, sir. आयरमैन चैलेंज वगैरह आपने किया, तो जैसे अभी आपका यही चल रहा है कि इसके अलावा भी आप ऐसे कोई और ट्रायथलॉन मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिलहाल? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैडम. मैं अभी तो आई हैव गॉन इनटू दिस ईस्टर्न फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड सूर्य नमस्कार. अच्छा, ओके. मैं अभी सूर्य नमस्कार को टारगेट कर रहा हूँ. तो आई एम प्लानिंग की I'll do quite a lot number of Surya Namaskars. So मैं 50 सूर्य नमस्कार तक पहुंच गया. Oh wow. But my work is not allowing me and sometimes I'm getting sick also. Sometimes मैं cold and इसका भी थोड़ा immunity के चक्कर भी है. तो sickness as in like क्या मतलब क्या feel कर रहे हैं exactly? No, मतलब sometimes I get cold and all. तो मेरा ये policy है कि when your health is unwell, you should take rest. So in that way, I am good. I don't have any problems, major problems. Only thing is sometimes. So like just last 2-3 days, I'm having a light cold. So I am not doing anything. Otherwise, I was doing Surya Namaskar. मैं 50-60 तो एक दिन में कर देता हूँ. 50-60 सूर्य नमस्कार एक दिन में? Wow. 50-60 तो मैम when you keep doing it, automatically हो जाती है. मुझसे तो एक नहीं होता. Kapoor and I think Shilpa Shetty, they do 108 or something. हाँ, so of course they're so much into fitness, वो भी कितने जमानों से, तो उनका तो अलग ही लेवल होता है. और मैम मेरे हिसाब से तो सब लोगों को करना भी चाहिए. हाँ, ये बात तो है. 108 तो नहीं बोला, कम से कम 15-20 मिनट कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. मतलब never ever start or end the day with a zero workout. At least do one.
0.1 ही रिजुविनेशन भी होता है। मिलता है ऐसे, सुबह सुबह उठ के हैं? एनर्जी आ जाती है काम पे जाने से पहले, तो करना सब कुछ ये पर होता है जरूरी। कुछ करना चाहिए, रात को सोने के पहले थोड़ा वॉकिंग कर लो, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए एवरी डे, मतलब अनलेस, बिकॉज व्हाट वी हैव फाउंड इज लाइक, आई एम आल्सो मास्टर्स इन साइकोलॉजी, तो उसमें भी ये बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी, द बेस्ट क्योर फॉर ऑल द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर a little bit of exercise. हम्म। Exercise increases your dopamine, and I read हम्म। lot of quite a lot of self-help books. In every self-help books they have suggest exercise. हम्म। Other things may change, but one thing which is common in all the self-help books is to do some exercise. हम्म। दैट्स Hmm. ट्रू। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे सुबह उठ के सबसे पहली चीज तो आप सूर्य नमस्कार करते हो ऑफ कोर्स, तो उसके बाद आपका डेली रूटीन कैसा जाता है, मतलब दिन कैसा बीतता है आपका? मैं सबसे पहले उठ के पूजा करता हूँ। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले मैं पूजा करता हूँ, पूजा करने के बाद देन मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ। हम्म। नमस्कार करने के बाद बच्चों को थोड़ा सा रेडी करके स्कूल भेजता हूँ। हम्म। ठीक। फिर उसके बाद देन आई रीड लिटिल बिट, ट्राई टू रीड लिटिल बिट एंड ट्राई हम्म। टू राइट समथिंग, हम्म। journaling or something, हम्म। and I make it an habit of reading newspaper every day. Then अच्छा। then I go to the office. हम्म। हम्म। एंड देन पूरा दिन ऑफिस में ही निकल जाता होगा। ऑफिस में तो पूरा दिन निकल जाता है। हम्म। मतलब वंस यू गो टू द ऑफिस तो टाइम गोज वेरी फास्ट, हम्म। एंड दिल्ली में तो थोड़ा टाइम तो ट्रैफिक को भी देना पड़ता है। थोड़ा, सर बहुत। अभी रिसेंटली ओनली, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे ओनली, मैं सीपी गई थी इनकम टैक्स ऑफिस, एक ऑफिसर से मिलने, एंड मेरे को 2 घंटे लग गए नोएडा वापस आने में। इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी। Sometimes it is, sometimes it is very difficult. इट इज एंड गिवन द फैक्ट दैट इतनी सारी चीजें आप ऑलरेडी लाइफ में झेल चुके हैं, कैंसर जैसी चीज हो चुकी है आपको, विच इज अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। और कैंसर यूजुअली ऐसा होता है कि भाई कितनी बार होता है कि लास्ट स्टेज पे जाके डिटेक्ट होता है। तो कैंसर जैसी एक बीमारी को बीट करते हुए आयरन मैन करना कैसे मैनेज कर पाए सर आप? Uh, See, the both are different aspects. One is to fight the disease and come out of it. Second is हम्म। like you do a challenge. या। So everybody who comes out of the disease will not do this challenge, हम्म। but everybody can come out of the disease. हम्म। Everybody can come out of disease. Cancer is a dreadful disease. It has got lot of fear among the people, हम्म। and it is fatal also. The most important thing in about this disease is like you have to diagnose at the right time. हम्म। Okay, so and we have to diagnose what type of cancer it is. एग्जैक्टली। We should be always be aware of the symptoms, always keep checking about our body parameters like weight, our energy level, and any changes in the human body. So these things help us to track whether our body is in the right state of affairs or not, and राइट। do our regular checkups and all, so that we can find out if at all we have any disease at a very early हम्म। stage. हम्म। And one thing about cancer is like if you are able to detect the cancer at a very early stage, most of the cancers, almost I think 100% of the cancers are treatable, provided you detect the cancer at the right stage. या। What happened to me was like I was detected little late, अच्छा। because by the time it was detected, it had spread through the entire body. हम्म। So I was in a very precarious situation. My life was in danger, but somehow with the blessings of the God, support of my family, my parents, my friends, my batchmates, the medical fraternity, the nursing fraternity, they, because of the support of these people, I was able to come out of the disease. Not only I was able to come out of the disease, I was able to fight COVID as well. हम्म। That is what it happens in everybody's life. हम्म। Majority of the people will go through this, and it is very difficult also. It's not an easy thing as what I am saying now. A हम्म। person who has endured it will understand how difficult it is. एब्सोल्युटली। Though most of the cancers are treatable, the journey is very difficult. हम्म। Because chemotherapy in itself is a difficult हम्म। process. ट्रू। Sometimes chemotherapy is associated with operation. Sometimes you have हम्म। to do radiation. Sometimes you have to do bone marrow transplant, which हम्म। I also had to undergo bone marrow transplant, which is a ओह। very difficult thing to undergo. या। So the journey is difficult. So once we are undergoing the journey, there are a lot of issues which we face.
there are two aspects of it. One is the physical aspect and one is the emotional or the mental aspect. Hmm. The physical aspect is the physical difficulties which you have to face, the pain, mm, the lower, the reduction in immunity, vulnerability, Hmm. tiredness, nausea, mucositis, where your food pipes are damaged, you can't Hmm. eat, you can't drink sometimes. So these are the physical pains or physical sufferings which you have to face. And the Yeah. second, mental or the emotional sufferings, where there is a lot of uncertainty in your life, where there is lot of unexpected unexpectations, a lot of things which are not unexpected in your life, Hmm. and you have to fight yourself, where your thoughts become a problem for you. So Hmm. these are things which every patient has to undergo. And another thing which we have to undergo is the toughest question of why me, why Okay. why yeah, why Hmm. why me. So that is something which is directed to yourself. So Hmm. it is actually paining yourself with these questions. So Yeah. at the end of the day, you get adjusted to it, and you fight the disease, and you come out. Hmm. So what I did was, I also did the same thing. I came out of the disease. I came out of it. Then I went a little bit ahead, and then I thought I'll do the Ironman, because I thought if I am able to do the Ironman within a Hmm. year, I survived cancer. I would be able to send a message across to all the people who are facing difficulties in their life, especially cancer or any disease or any other difficulty, financial difficulty, or any personal difficulty, might be emotional, mental, or anything. I wanted to send a message across that difficulties are not difficulties, they are challenges. Hmm. It is all your perception. You take it as a challenge. You should have the attitude of never give up, never Hmm. give, Hmm. never ever give up in life, because the difficulties are not going to stay for a quite a long time. Hmm. Soon, if you be little bit patient and perseverant, these difficulties will end, Hmm. and life will offer you better things. And upon that, if you work hard, and if you instill in your life habit of discipline, consistency, and persistence, you will be able to achieve things which are which you which prima facie appear as unachievable. Yeah. So that was the intention why I did Ironman. I Hmm. wanted to send a message across to all the people fighting cancer or difficulties, that life is never an end. It is Hmm. just a bend where you have to slow down a little, then you can again accelerate and reach to the speeds which you have never imagined. Exactly. And I, by putting these thoughts into a book, I actually wanted to send the message of resilience, perseverance, and consistency and discipline to all the people out there. Hmm. And I wanted to share my experiences as a cancer survivor. What are the difficulties which you face? What are the uncertainties you face? So Hmm. that tomorrow somebody comes across this thing in their life, they Hmm. have some guidance, like what are the things which they can expect to face, and Hmm. how they can come out of it positively. Hmm. राइट। तो जैसे एक चीज जो होता है कि कैंसर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी भी किसी भी को भी किसी भी एज में कोई सा भी कैंसर हो जा रहा है। तो जैसे हाँ। आपने कभी सोचा, तो ऑफ कोर्स कोई नहीं सोचता कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा। बट ऐसे क्या अर्ली सिम्टम्स आपको दिखे जिसकी वजह से आपने सोचा कि टेस्टिंग करानी चाहिए? डिटेक्ट कैसे हुआ आपको कैंसर? सिम्टम्स सबसे पहले पेन हुआ था, पेन बहुत ज़्यादा था। तो एक्चुअली मुझे बहुत सारा पेन हुआ था बॉडी में। फिर मेरा टायर्डनेस आना शुरू हो गया। हम्म। टायर्डनेस के कारण आई वाज नॉट एबल टू हैव एन फीलिंग ऑफ एनर्जाइज्ड, और एक नॉर्मल जैसा फील नहीं लग रहा था। दूसरा, हम्म। वेट बहुत ज़्यादा हो रहे, ओके। और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पेन थे। पेन के कारण मैं सो नहीं पा रहा था। हम्म। तो sometimes the pain was so intense that I started crying. मतलब ओह। मैं जो जैसा रोना भी शुरू किया। तो इनिशियली तो आई जस्ट थॉट लाइक वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने डॉक्टर के पास दिखाना शुरू किया, तो डॉक्टर्स ने काफ़ी चेकिंग किया। चेकिंग करने पर भी कोई इन्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर बाद में ये भी सोचा डॉक्टर्स ने, या फिर सब लोगों ने ये सोचा, यार आई एम हैविंग सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। हम्म। So initial days were very difficult. By the time 3 months had lapsed, by the हम्म। time I diagnosed the disease, when I had the first symptom, the 3 months were very difficult, where I was not sleeping, where I was not able to eat properly, where I was not able to work properly. हम्म।
फिर काफी टेस्ट करने के बाद लगा यार इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ दूसरे दिशा में आपको हमें चेक करना चाहिए। तो हम्म दोबारा एमआरआई स्कैन किया। एमआरआई स्कैन में थोड़ा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लगा कि देर आर सम ग्रोथ्स विच आर अनकंट्रोलेबल, सो इट इज इंक्रीजिंग इन साइज ऑल्सो। Then people started doubting whether it might be cancer. हम्म So they actually then did an MRI, then did a biopsy, then did a PET scan, and it was confirmed it was stage 4 cancer. स्टेज ओके। एंड एग्जैक्ट कहाँ का कैंसर है सर आपको? इसको इसको दिस इज a type of blood cancer. ओके। बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड हम्म बाय बोन मैरो। हम्म हमारा ब्लड के पार्ट होता है वो एक्चुअली, जब वेन इन्फेक्शन होता है तो वो प्रोड्यूस होता है, वो इन्फेक्शन को फाइट करता है। जब इन्फेक्शन खत्म होने के बाद वो वापस बॉडी ब्लड में डिसोल्व हो जाता है। हम्म तो मेरी बॉडी में क्या हो रहा था कि जो लिम्फ नोड्स था ये बन रहा था और बड़ा 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 होता जा रहा था। वो हम्म डिसोल्व नहीं हो रहा था, वो बड़ा हो रहा था। तो हम्म ब्लड में पहले स्प्रेड हुआ, ब्लड में स्प्रेड होने के बाद ऑर्गन्स के अंदर भी घुसना शुरू हुआ। हम्म जब ऑर्गन्स के अंदर घुसना शुरू हुआ तब इसको स्टेज 4 मानते हैं। और हम्म तब मुझे बॉडी में पेन होना शुरू हुआ था। ओके। तो वही है कि जब तक डिटेक्ट होता है तब तक वो इतने एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाता है कैंसर, विच इज यस वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कैंसर इज समथिंग जो स्टार्टिंग में स्टेज 1 स्टेज 2 पे तो आपको पता भी नहीं रहेगा। पता बाय नहीं द चलेगा, टाइम, पता हाँ, नहीं बाय द चलेगा। टाइम आप चेकअप कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, इट्स ऑलरेडी काफी Yeah. आगे तक। So that is, it's very important that we detect cancer at a very young or very early stage so या that we are able to treat it properly, या and it will not come again. एग्जैक्टली। सो लाइक जब आपको पता चला कि कैंसर निकला है, आपका फर्स्ट थॉट दिमाग में क्या आया? क्या रिएक्शन था? मतलब रिएक्शन अच्छा तो नहीं रहा होगा, वो पहला थॉट क्या आया दिमाग में? पहले थॉट तो ये था कि कम से कम तो जवाब तो मिल गया। हम्म 3 महीने से तो यार घूम रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम्म प्रॉब्लम है, सब लोग हम्म बोल रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था पेन। हम्म मैं ज्यादा सोच रहा था, मैं स्ट्रेस ले रहा था, इसलिए मुझे दर्द हो रहा था। तो मैं अपने आप को बहुत दोषी मानते थे। हम्म ठीक है, तो जब इसको आंसर मिल गया कि ये कैंसर के कारण है, फिर जब मैं मुझे पहले पता चला हम्म तो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट लगा कि कम से कम रीजन तो था। बट इट वाज वेरी डिवास्टेटिंग फॉर माय फैमिली एंड ऑल दोस पीपल, बिकॉज इट वाज वेरी शॉकिंग हम्म कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हो सकता है, बिकॉज इट मेक्स योर लाइफ इन सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी। और हमें बहुत सारे इग्नोरेंस भी है, हम्म कैंसर के बारे में कुछ पता नहीं क्या होता है। सिर्फ ये सुना है कि कैंसर में कुछ कीमोथेरापी चलता है, बट ये भी पता नहीं हम्म कीमोथेरापी क्या होता है, हम्म क्या क्या प्रॉब्लम है। और ये था कि मतलब आगे क्या होगा, बच्चे भी थे, कोविड भी चल रहा है, अभी जस्ट हम्म ट्रांसफर हुआ गोवा में। ठीक है, तो दिट वाज वेरी मच अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बट पहले तो बहुत ना सैड हुआ, फिर देन आई वाज लिटिल बिट ऑफ एंग्री आल्सो कि मतलब ऐसे क्यों हुआ, फ्रस्ट्रेशन थे। फिर स्लोली वी गॉट यूज्ड टू इट एंड देन वी टुक द फाइट। हम्म एंड देन आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट इमीडिएटली मुझे शुरू करना पड़ा बिकॉज इट वाज स्टेज 4। तो डॉक्टर्स बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो। हम्म एंड इट वाज वेरी पेनफुल। जब मेरा डायग्नोस हुआ था, मैं एक्चुअली आई वाज लिंपिंग, क्या बोलते हैं, मतलब जब एक पैर ऐसा करके वो लंगड़ाना। लंगड़ा 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 हाँ। जैसे आई वाज वॉकिंग, माय गेट पैटर्न वाज लाइक दैट। तो हम्म मेरे पैरों में इतना प्रॉब्लम था, पेन था कि मैं लंगड़ा जैसा मतलब वॉकिंग कर रहा था, तो सारे पेन थे, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। या एंड देन जो आयरन मैन का आपने डिसीजन लिया करने का, दैट वाज व्हाइल यू वर गेटिंग ट्रीटेड और लाइक व्हाइल यू वर नो, ओके? मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, ट्रीटमेंट के टाइम में तो आयरन नहीं कर हाँ सकता। एग्जैक्टली उनके वही। ट्रीटमेंट के टाइम में तो मेरा इम्यूनिटी एंड ऑल इज वेरी लो एंड आई वाज हाँ। अंडर ट्रीटमेंट। अंडर ट्रीटमेंट में क्या होता है, लीवर किडनी सबके एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, बिकॉज कीमोथेरापी डैमेजेस योर लीवर, कीमोथेरापी डैमेजेस योर किडनी। So after the treatment, I started training for Ironman. After I was cleared of cancer, November 2021 में I was cleared of cancer. हम्म बोला कि आपकी बॉडी में अभी कैंसर नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट लिव नॉर्मली एंड ट्राई टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। हम्म तो फिर नवंबर में आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग सो दैट जो वेट मैंने गेन किया था बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट उसको थोड़ा कम करे। एंड हम्म आई वांटेड टू कम बैक टू लाइफ इन अ वेरी गुड मैनर, सो मैंने सोचा मैं आयरन मैन कर लेता हूँ। तो हम्म इनिशियली तो इट वाज जस्ट फॉर वेट लॉस, बट हम्म स्लोली स्लोली इट बिकेम ए पैशन फॉर मी, इट बिकेम ए जर्नी, आई स्टार्टेड एंजॉइंग द जर्नी। और मुझे ऐसा भी लगा कि अगर मैं ये कर पाऊंगा तो कल एक दिन मैं किसी को बता भी सकता हूँ कि यार तुम्हें जो प्रॉब्लम है, या आपको जो प्रॉब्लम है, ये कैंसर, ये हम्म कुछ नहीं है, ये हम्म बीमारी छोटा सा एक बीमारी है, आप इसको थोड़ा स्ट्रांगली आपको इसको हैंडल करो, तो हम्म आप इससे निकल के आ जाएंगे और आप मेरे जैसा भी कुछ
कुछ बड़े चीज कर सकते हो. So that was Hmm. my message to the whole world. So that was why I took it as a very disciplined manner. I took up this training and I was able to complete it. लेकिन जैसे सर, जैसे कि कैंसर के बाद बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, एंड देन यू स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर आयरन मैन राइट आफ्टर, तो आपका आपका तो चलिए अंदर से मोटिवेशन आ रखा था, बट आपकी फैमिली ने आपको कभी ऐसे नहीं बोला कि एकदम से एक्सर्शन मत दो अपने आप को? हाँ, इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन आल्सो. ठीक है, तो फिर एक्चुअली क्या हुआ था, द बेस्ट थिंग वाज टू कंसल्ट अवर डॉक्टर. या। डॉक्टर ने बोला कि इनिशियली तो ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा भी नहीं था, ट्रेनिंग तो लास्ट फेज में बहुत ज्यादा हुआ था. फर्स्ट हम्म। फेज में 40-50 मिनट का था. तो डॉक्टर ने बोला 40-50 मिनट का वर्कआउट आप कर सकते हो डेली, एंड हम्म। आपको करना भी चाहिए, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था. तो हम्म। लाइफस्टाइल डिसीजेस का भी प्रॉब्लम होता है, तो वेट को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए. तो वर्कआउट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू. या। बट इन्होंने ये बोला कि ज्यादा एक्सर्ट करना या ना करना वो तो आपकी बॉडी के ऊपर है, और आप कितना खा सकते हो और आपने कितना ले सकते हो. हम्म। तो मतलब आपको अच्छा सा बॉडी को मतलब नरिश करना चाहिए बाय ईटिंग वेरी गुड फूड. हम्म। और आपको इतना भी ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए कि मतलब आप बहुत थक जाए. तो हम्म। यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग दैट. आप मेरा मुझे कोच भी था, तो कोच भी ऑल्सो बोल रहा था कि रेस्ट, काफी बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए, सो हम्म। दैट यू रिकवर प्रॉपरली. हम्म। और बीमारी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑल दोस प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक. और अच्छा खाना खाना चाहिए, मतलब जैसे एक डाइट में भी थोड़ा शिफ्ट हुआ व्हेन द ट्रेनिंग स्टार्टेड. इनिशियली इट वाज मोर और लेस, हम लोग साउथ इंडियन लोग हैं, थोड़ा चावल ज्यादा खाते हैं. हम्म। तो चावल इज बेसिकली कैलोरी रिच. हम्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करके मैंने प्रोटीनिशियस डाइट में थोड़ा सा चेंज किया, उससे थोड़ा मुझे ज्यादा एनर्जी भी लगता था हम्म। और मैं ज्यादा वर्कआउट भी कर सकता था. ओके, दैट्स ग्रेट सर। एंड जैसे कि पुलिस में आपको, आप पुलिस में हैं, बहुत रिगरस ट्रेनिंग मिलती है, पुलिस ट्रेनिंग का भी एक अलग ही लेवल होता है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पुलिस ट्रेनिंग ने कहीं ना कहीं आपकी जो कैंसर फाइट करने की पावर थी, साथ ही साथ जो आयरन मैन ट्रायथलॉन आपने किया है उसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प की हो? Yes, very important. Actually, I would give a lot of credit to my training center, Sardar Vallabhai Patel National Police Academy, जहाँ पे हमको एक साल का ट्रेनिंग होता है. हम्म। एंड इन बिटवीन ट्रेनिंग्स भी होता रहता है. हम्म। तो सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ऐसा होता है कि मतलब हम लोगों को थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब होता है तो हमें हॉस्पिटल भेजता है. हम्म। तो हॉस्पिटल इतना डिप्रेसिव होता है कि आप अकेले हो, कुछ नहीं कर हम्म। सकता. तो इससे बेटर तो लोग ये सोचते हैं कि यार इससे बेटर है कि ग्राउंड में जाके थोड़ा राउंड राउंड मतलब थोड़ा भागा दौड़ी या फिर क्लास में बैठ जाए. तो वी हम्म। ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द ग्राउंड ऑन इन अवर ट्रेनिंग rather देन इन हॉस्पिटल और ट्राइंग टू बंक द क्लासेस. और हम्म। ट्रेनिंग और फिटनेस को बहुत वहां पे स्ट्रेस देता है, डिसिप्लिन को भी बहुत स्ट्रेस देता है, कंसिस्टेंसी को बहुत स्ट्रेस देता है, साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग को भी बहुत स्ट्रेस लेता हम्म। बहुत स्ट्रेस देता है. तो इन दैट वे द ट्रेनिंग हेल्प्ड मी गिव यू दैट कॉन्फिडेंस. दूसरा हमें वहाँ पे स्विमिंग का भी ट्रेनिंग होता है, साइकिलिंग, रनिंग, सबका ट्रेनिंग होता है. तो वहाँ हम्म। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई डिड 21 किलोमीटर रन. फर्स्ट हम्म। टाइम इन माय लाइफ आई स्टार्टेड स्विमिंग 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, जितना भी हो. पहले तो 100 मीटर्स करना भी बहुत मुश्किल था, तो इन लोग हम्म। अच्छा टेक्निक हमें सिखाते थे. हम्म। दूसरा साइकिलिंग भी हमें करते थे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीनों एक साथ करेंगे. हम्म। एक दिन में वर्कआउट होगा, कभी स्विमिंग, 3 दिन के बाद होगा कभी साइकिलिंग, एक दिन हम्म। योगा होता है, एक हम्म। दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ट्रेनिंग होता है जिसमें हम्म। 40-50 मिनट का ही वर्कआउट होता है. हम्म। ये तो 8 घंटे का कंटिन्यूस वर्कआउट था, और 3 टाइप वर्कआउट को मिक्स भी करते थे. तो पहले इनिशियली मुझे थोड़ा डाउटफुल था, बट हम्म। हमेशा हमारे ट्रेनिंग में ऑफिसर्स ये मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है जो आईपीएस ऑफिसर्स को डरा सकते हो. अरे वाह, श्योर। तो सो दैट एक्चुअली रिवर्बरेटेड इन माय माइंड. ठीक है, या। हमारा एक ट्रेनिंग उस्ताद होते थे, पढ़नी उस्ताद. हम्म। पढ़नी उस्ताद जब हम ट्रेनिंग में थोड़ा थक जाते थे हमें बुलाते थे, केरला कमांडो, अभी उठो और करो, क्योंकि अच्छा। हमारा हर स्टेट से लोग आता है. तो मेरे हाँ। स्क्वाड में सारे स्टेट से लोग होते थे. तो जब हम्म। मैं केरला से, तो मुझे केरला कमांडो बुलाते थे. मेरा फ्रेंड जो थे उसको महाराष्ट्र कमांडो बुलाते थे. अच्छा। तमिलनाडु से तो तमिल कमांडो बुलाते थे, तो कर्नाटका कमांडो, ऐसा हमें कमांडो करके हम्म। तो तमिल केरला कमांडो उठो. हम्म। आप टायर्ड क्यों है, हाँ। आरपीएस ऑफिसर तक था नहीं, उठो और करो. तो हाँ। that type of training which we had, that helped me in fact a lot in this training, and also in my fight against cancer. बिल्कुल, बिल्कुल सर। एंड मैंने सुना है कि आपके जो आयरन मैन कोच थे उनकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। आई थिंक ही वाज अ फॉर्मर ड्रग एडिक्ट और समथिंग, सो। Yeah, जो कोच है, कोच, या। yes, yes. In fact, या। Neil is younger to me by around might be 6-7 years, 6-7-8 years younger to me. ओके। So he's married now. हम्म। So when he was studying,
तो मतलब I think he was in college or something. He because of some peer pressure or something, he entered into the world of drugs, Hmm. and he became a drug addict also. Hmm. And he, like me, like I had to fight cancer, he had to fight drug Hmm. abuse, and he had to undergo rehabilitation. तो rehabilitation के बाद he took career as fitness as his career. Hmm. फिर उन्होंने काफी बार आयरन मैन किया. He became a fitness coach. He became assistant director of योस्का which conducts this Ironman triathlon. Hmm. तो एक स्टोरी उनका भी है. तो फिर उसके बाद वो फिटनेस में ज्यादा ध्यान दिया. देन ही एक्चुअली स्टार्टेड, एक्चुअली ही उसका एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि whenever he wants to try something on others, first he tries on him. Okay. जैसे खाने के बारे में कुछ बताना है, जैसे हमें बताना है कार्बोहाइड्रेट फूड चेंज करके प्रोटीन फूड करना है, तो ही Hmm. ऑल ट्राई फर्स्ट ऑन हिम. ही विल स्टॉप द कार्बोहाइड्रेट फूड Hmm. एंड ही ट्राई ऑन प्रोटीन फूड, एंड देन ही विल से दिस इज द थिंग व्हिच हैव वर्कड फॉर मी, यू कैन आल्सो ट्राई दैट. या Hmm. कुछ नया डिवाइस आता है जिसको हेल्प कर सकते हैं फिटनेस के लिए या किसी के लिए, तो ही विल जस्ट फर्स्ट ट्राई ऑन हिज बॉडी एंड देन ही विल Hmm. टेल यू कि दिस इज हाउ इट इज वर्क. सो ही Right. हैज हिज ओन लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. तो इसमें हमें थोड़ा ट्रस्ट भी मिलता था, एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव हमेशा. एक्चुअली मुझे बहुत बार जब मैं आयरन मैन तैयारी कर रहे थे, बहुत बार डाउट होते थे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो Hmm. हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, सर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप हर दिन ट्रेनिंग करते हो, तो आप आयरन मैन पक्का बनेगा, टेंशन ही Hmm. मत ले लो, आयरन मैन बनेगा और हमारा स्टोरी बहुत बड़ा फेमस भी हो जाएगा. Hmm. तो आई वी विल ऑलवेज विन इट. तो कभी कभी मैं मुझे भी सोचता है कि यार ये कैसे बोल सकते हैं. देन आई गो टू नो अबाउट ही स्टोरी. उसका भी एक पास्ट था. तो देयर वाज ए कनेक्ट बिटवीन मी, सो वी आर Hmm. लाइक ब्रदर्स नाउ. सो Hmm. उस कनेक्शन से थोड़ा सा एक अच्छा रैपो भी मिला, थोड़ा सा ट्रेनिंग भी अच्छा निकला, एंड इट वाज वेरी एंजॉयबल आल्सो. Hmm. तो आपको ये मिले कैसे? Like, how did you find him? How did you Yeah, reach that him? was like that is also an interesting thing. So Yeah. initially I was actually had posted in headquarters. मेरा तबीयत थोड़ा मतलब I was just recovering from the illness. Hmm. तो मुझे ज़्यादा heavy posting नहीं दिया था. तो I was in the headquarters where basically it is not field work, it is in a desk job. Though there Hmm. was work, it was a desk job. तो मेरे अंडर एक इंस्पेक्टर आया. his name was सतीश. His Hmm. name is सतीश. So he is actually an Iron Man. उन्होंने Hmm. 2019 में Iron Man किया था. Hmm. तो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि यार वेट कम करने के लिए क्या करूं. तो मैं सोच Hmm. रहा था कि मैं जैसे ही बातें बातों में, जैसे आपसे भाई बात कर रहा, जैसे उनसे भी Hmm. बात कर रहा था, तो उन्होंने उनको मैं बोला कि सतीश मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कुछ मैराथन के लिए तैयारी कर. Hmm. सतीश ने मुझे बोला सर इस एज में मैराथन ट्राई 42 किलोमीटर ट्राई करेंगे तो आपकी नीज के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. Hmm. तो उसने बोला कि सर आप आयरन मैन ट्राई करो. मैं बोला आयरन मैन क्या होता है यार, मैंने तो Hmm. कभी सुना नहीं था. तो Hmm. उसने मुझे बोला कि सर आयरन मैन ऐसा होता है जिसमें स्विमिंग भी होता है, साइकिलिंग भी होता है, रनिंग भी होता है. तो इसमें तीनों मिक्स है, तो बॉडी में ज्यादा इट इज डिफिकल्ट बट इट इज गुड फॉर द बॉडी. मिक्स है ना. Hmm. तो एक दिन रनिंग के बाद आपको स्विमिंग करने मिलेगा. स्विमिंग इज लाइक कंसिडर फिजियो. Hmm. ठीक है. तो इन दैट वे इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो. हर दिन चेंज भी है, सेम चीज नहीं करने का, तो आप एक बार ट्राई तो कर लो. ठीक Hmm. है. मैंने बोला ठीक है. I'll try. So what should I do? Then he told I will introduce you to the coach. Hmm. सतीश ने नील को मुझे मिलवाया. Then after that the journey was like what I told earlier. We started developing a rapport. We started enjoying the workout, and finally I became an Ironman. That's amazing. सतीश also भी मेरे सतीश ने भी मेरे साथ Ironman किया था. In fact, he is a 3 time Ironman. Oh, हाँ, wow. बट That's उसका great. लेवल ऑफ फिटनेस इज डिफरेंट. हाँ. हम लोग तो नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन थे. मतलब हाँ. थोड़ा सा आईपीएस और आईएएस में जो लोग आता है वो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेते, तो हम हाँ. ज्यादा वी आर नॉट दैट मच ऑफ इनटू फिटनेस, दो वी मेंटेन ए लेवल ऑफ फिटनेस. सर्विस में आने के बाद थोड़ा सा फिटनेस का हमारे अंदर चलता है, तो Hmm. वैसा उस लेवल तक फिटनेस का नहीं हूँ मैं. तो आई एम ए वेरी नॉर्मल पर्सन एज फार एज अ बॉडी power or fitness is concerned. So, Hmm. and Satish ka level of fitness was different. So Hmm. Satish is like he can do Ironman now also. I think if at all he Yeah. asks कि wetsuit के करो, तो he can give a trial, and I think he will be able to do it also. And how But old is he? he is posted in, he is a Goa police inspector. तो अभी गोवा में ही है. I think he is inspector of some police station or some unit, I think. Asha, and how old is he? He might be 6 7 years elder to me. अच्छा.
ओके हाँ। ओके। तो हम्म। जैसे वो हैं, वो अपनी इंस्पेक्टर की जॉब के साथ आयरन मैन का प्रिपरेशन कर रहे थे, आप एसपी क्राइम थे उस टाइम पे गोवा के, आप उसके साथ गो अपना आयरन मैन का प्रिपरेशन करें, मैनेज कैसे करते हैं आप लोग ये दो हाँ, इसमें डिफरेंट चीजें? एक्चुअली सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि मतलब हमारा नौकरी थोड़ा टफ होता है। हम्म। नौकरी में एक्चुअली टाइम नहीं मिलता, तो एक्चुअली तो इसमें क्या होता है कि 10 बजे का अगर मान लो नौकरी स्टार्ट होता है तो इट गोस ऑन टिल नाइट। या। ठीक है। एंड आई वाज एसपी क्राइम, तो उस टाइम एसआईटी करके एक लैंड के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया था, तो काफ़ी हेवी भी थे वर्क। एंड देयर वाज लॉट ऑफ स्क्रूटनी ऑन अस, देयर वर लॉट हम्म ऑफ मे बी हैड टू डू इट मेटिकुलसली एंड ऑल, सो इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मेंटेन द वर्क एंड द थिंग। तो मैं इनिशियली सोचा मैं शाम को करूंगा वर्कआउट, बट शाम को कभी होता नहीं है, काम एक बार शुरू होने के बाद खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल। एंड आई थॉट आई विल शिफ्ट माई वर्कआउट टाइम्स टू अर्ली मॉर्निंग। हम्म मैं स्टार्ट किया 4 बजे उठने का। 4 बजे उठ के थोड़ा प्रेयर वेयर करने के बाद आई यूज टू गो टू द वर्कआउट वर्कआउट बाय अराउंड 5 o'clock। हम्म इनिशियल टाइम्स में तो वर्कआउट यूज टू स्टार्ट एट 6-6:30, बट हम्म। व्हेन द पीरियड स्टार्टेड इंक्रीजिंग, द ड्यूरेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, में तो 5 बजे शुरू कर देते, सो अच्छा। दैट बाय 10 o'clock आई माई वर्कआउट इज ओवर एंड आई कैन गो फॉर द जॉब। हम्म। दूसरा चीज ये कि वर्कआउट 3.5-4 घंटे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए। बिल्कुल। मैं कोच ने मुझे बोला था मिनिमम 7 आवर्स स्लीप तो कंपलसरी है। तो अगर हम्म आप 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे पीछे करो, दे 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9 ओ क्लॉक यू शुड स्लीप। हम्म तो मैं 7:30-8 बजे तक जैसा भी वो काम खत्म करके आई यूज टू कम एंड स्लीप बाई नाइन हम्म ओ क्लॉक हम्म। इसमें एक और एडवांटेज ये था कि मैं बच्चों के साथ सो सकते थे, तो हम्म। दैट वेरी नाइस। बच्चों के या। साथ जोक वोक बोल के, स्टोरीज बोल के सो सकते थे, सो दैट हम्म। वाज नाइस। इन दैट वे द जर्नी वाज वेरी मेमोरेबल ऑल्सो। तो तो आपको रात ऐसा नहीं को लगा 9 था बजे जी? हाँ जी, सॉरी। और रात को 9 बजे सो जाते थे, सवेरे हम्म 4 बजे उठते थे, 5 बजे वर्कआउट शुरू, 5 से 6, 7, 8, 8:30 बजे तक वर्कआउट करते, फिर रात के ब्रेकफास्ट करके इमीडिएटली रेडी होके देन आई गो टू द हम्म। ऑफिस। तो आपको ऐसा नहीं लगा था उस टाइम पे कि जैसे डुअल लाइफ जी रहे हैं, सुबह मैं कुछ और ही हूँ, शाम को मैं कुछ और ही हूँ, नहीं, लाइक? ऐसा मतलब, सो इट्स सी फिटनेस एक्चुअली शुड बी पार्ट ऑफ एवरी पर्सन्स हम्म लाइफ। कि आप उसको डुअल नहीं बोल सकते, इट इज हम्म। पार्ट ऑफ द लाइफ, इट शुड बी पार्ट ऑफ द लाइफ, या। irrespective of what job you do, irrespective of what gender you are, irrespective of what age you are, and if you are healthy enough to do any type of workout or anything which exerts your body, it should be part of your life. हम्म तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब फिटनेस इज ए डुअल थिंग, हम्म बट इट डिपेंड्स अपॉन ए पर्सन कि आप क्या करना चाहते हो। सम पीपल माइट बी एबल टू डू 20 मिनट्स, सम पीपल माइट बी एबल टू डू 30 मिनट्स। आई वुड एडवाइज एवरीबडी शुड डू मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। राइट। So, but now I had a goal in my mind. When I हम्म had a goal in my mind, I had to do more workout. हम्म तो मुझे एक अच्छा सा फीलिंग ये आता कि रात को सोने के पहले मैं नेक्स्ट डे देखता था कि मेरा क्या वर्कआउट होता था। एक एप्लीकेशन होते थे उनका, नील का एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन में आता था कि कल ये वर्कआउट है। तो फिर ये माइंड में होता था सवेरे उठ के मुझे ये वर्कआउट करना। सम हम्म। सम ऑफ द वर्कआउट्स व्हिच आई एंजॉयड वाज लाइक रनिंग, आई एंजॉय अ लॉट। ओके। तो जैसे गोवा में बारिश बहुत होता है, हम्म तो बारिश में भागना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम्म ठीक है। तो जिस दिन रनिंग का वर्कआउट होता था आई वॉज वेरी हैप्पी। हम्म और बारिश होता तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं, बारिश में भागना, बारिश में साइकिलिंग करना, हम्म एंड बारिश में स्विमिंग पूल में कर सकते थे, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना, सो दैट्स ऑल वेर गुड। हम्म तो इट वॉज लाइक समथिंग विच वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग, इट वॉज नॉट हम्म। डुअल। द वर्कआउट वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग माई हैप्पीनेस, my state, mental state, which was supporting my work. या। It was a mutually complementing each other, I would say. Not राइट। a separate compartmentalized thing. It was something which was mutually supplementing or complementing each other. दैट्स ब्यूटीफुल सर। एंड जैसे कि आयरन मैन एक्चुअली करने से पहले कितने टाइम या कितने टाइम पीरियड का आपका ये ट्रेनिंग चला है? I trained from February, and February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 10 months. 10 months, and then you finally did it in, I think, November. November 2020, I had the first symptom of cancer. November 2021, I came out of cancer, and November 2022, I did Ironman. Everything is like 1 year, 1 year, 1 year. Oh wow, so November has a really important space in your life, I believe. November 14th is my daughter's birthday also. Oh, that's so नवंबर sweet. 13 को मैंने आयरन मैन किया, नवंबर 14 को मेरी बेटी का बर्थडे मैंने किया। दैट्स रियली स्वीट। तो जैसे जब आपने आयरन मैन, जैसे मेरे को दिख रहा है कि आप अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं,
Yes, yes, yes. एंड तो और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपके बच्चे ड्यूरिंग योर इंटायर जर्नी जो कैंसर कराए आयरन कराए, दे वर योर बिगेस्ट मोटिवेटर्स। Yeah, तो I'll tell you one interesting thing. जैसे या लास्ट में आयरनमैन जब इवेंट कर रहा था तो लास्ट 2 किलोमीटर्स आई वाज लाइक कंप्लीटली एक्सॉस्टेड। या मुझे एक्चुअली लगा यार अभी बंद करके चले जाओ, मेरे से हम्म होगा नहीं। वेरी हम्म टायरिंग, मतलब आठ हम्म घंटा कंटिन्यूसली, एंड दैट इट वाज वेरी हॉट। हम्म पूरा एनर्जी चले गया, लेग्स आर क्रैम्पिंग, यू कांट मूव एन आउंस, मतलब हम्म एक मीटर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आई वाज वेरी हम्म टायर्ड एंड जस्ट सैट बाय द साइड। फिर मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली हम मैं आयरन मैन बनना इतना चाहता था कि मेरे बच्चों ने 2 टी शर्ट्स बनाया था, माई पापा इज आयरन मैन, माई फादर इज आयरन करके टी शर्ट पहन के दे वर वेटिंग एट द फिनिश लाइन। तो मेरे ओह mind में ये आ गया कि यार ये दोनों मेरे लिए वेट कर रहे हैं। हाँ तो ऐसा नहीं कि मतलब अभी आके मुझे इधर रोकना चाहिए, कुछ भी हो, ये लास्ट 2 किलोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर मी। हम्म वो उनको वो लोग खुश हो जाएंगे हम्म कि यार मेरा पापा ने आयरन मैन किया, मेरे पापा हम्म आयरन मैन। तो हम्म फिर मैं उठा वहां से, उठ के हम्म मतलब जस्ट हैड दैट थॉट इन माय माइंड एंड आई स्टार्टेड रनिंग वेरी फास्ट विद ऑल द ओह क्रैम्प्स एंड आई या फिनिश्ड। सो it was wonderful. That feeling is very wonderful. I don't know how to express it in words. It's a feeling which you can feel only when you feel it. that's true, that's true. And how old are they? They are now 9 and 7. At that Okay. time, they might be 7 and 5 or something. 2 years ki gap. Well, it might be 6 and 4 or 7 and 5. रियली 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 स्वीट। एंड Thank जैसे you. कि ये थॉट तो आपका जस्ट 2 किलोमीटर पहले आया दिमाग में कि Yeah, yeah, बच्चों yeah, के लिए yeah. भागना I है। have mentioned that in my book also. If at all you get a या chance to read, I think ओके, it now एब्सोल्युटली, आई you वुड can. डेफिनेटली लव टू। तो Thank जो you. जब आपने फिनिशिंग लाइन फाइनली क्रॉस करी, हाँ, तो पहला थॉट क्या आया? बच्चों से रिलेटेड, कुछ डीपर आया, कुछ रेस से रिलेटेड, क्या था, क्या चला दिमाग में सबसे पहला थॉट? मैं सबसे पहले तो यह था कि I did it. हाँ सबसे पहले ये था कि आई डिड, मतलब आई फेल्ट लाइक क्राइंग, माय वाइफ वाज देयर एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज या एंड नील केम। नील वाज द फर्स्ट पर्सन, ही केम एंड हग्ड मी। आई टुक बोथ माय किड्स इन द हैंड्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मैं थका हुआ था फिर भी हाँ मैंने बेटी को तो उठाया। फिर हाँ बेटी के साथ एक फोटो खींचा एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट दे पुट ए मेडल ऑन यू। द मेडल वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो मेडल मैंने देखा, इट इज लाइक 1 years ऑफ, मतलब हार्ड वर्क। सो दैट फीलिंग ना, जब व्हेन आप एक किसी के लिए तैयारी करते हो, और इट्स लाइक आई वुड से लाइक इफ somebody is preparing for an Olympic medal or something and you're getting the medal, something like that, that feeling I was like, मैं यार I have achieved it। and I was एक्चुअली, मतलब फिर मैं बहुत सारे लोगों को जिसने भी कंप्लीट किया, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। ठीक है, फिर मैं फैमिली के साथ एक फोटो खींचा, जो भी फ्रेंड्स, मेरा 2-3 फ्रेंड्स आया था मिलने के लिए। माय फ्रेंड टोनी हैड कम, माय फ्रेंड प्रवीण हैड कम फ्रॉम दिल्ली। सो दे वर आल्सो देयर वेटिंग फॉर मी टू फिनिश इट। या So it was a wonderful moment. I would say, like when you work hard for something and you achieve it, that feeling of ecstasy, या that extreme happiness, हम्म is what I feel. ऑफ कोर्स सर। और आपकी अगर जर्नी भी देखा जाए कहाँ, तो मतलब नॉर्मल पुलिस सर्विस ड्यूटी, कैंसर, बीटिंग कैंसर, आयरन मैन प्रिपरेशन, फिर आयरन मैन जीतना, तो इन सब के बीच में ऐसा कोई लाइफ लेसन आपको मिला हो जो पहले आपके दिमाग में इतना नहीं था, लेकिन अब आप उसके लाइक ट्रूली यू लिव बाय दैट लाइफ लेसन, देयर समथिंग लाइक दैट? मुझे लगता है कि एक तो वी शुड नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। हम्म ट्रू। वो सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है। कभी भी हम जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। हम्म कुछ भी इश्यू है तो आप थोड़ा होल्ड करो, हम्म हैव पेशेंस, हम्म and you should just hold on for some more time. हम्म That is one thing I learned. Second thing I learned is like relationships are very, very important in life. हम्म When I was fighting with cancer, some of the times it's not because I was completely always positive. हम्म कि एक आदमी को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। हम्म There are some times when your mind gives up. तब somebody at that time somebody should be there by your side to say हम्म that be strong, man. हम्म You're gonna fight it together. You will हम्म come back and you will come back with a bang. या So that can be your wife. For in my case, it was my wife, in my friends. So initially, I never used to tell people like I was fighting cancer. But when I हम्म started telling people I was fighting cancer, they started calling me.
started calling me. They tried to visit me, though they were not able to visit. They video called me. Hmm. They actually, they called me. My parents kept. They I was with them, तो वो मिलने डेली आते, डेली मिलते थे. मैं मतलब these relationships are the only things which you carry forward in the life. Always try to Exactly. maintain those relationships, Exactly. and relationships bring so much of positivity in you. Hmm. By default, I think life थोड़ा सा negative है. I think it Hmm. is evolutionary also for human beings to be little bit negative. Hmm. तो पॉजिटिविटी इंस्टिल करने के लिए रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड थिंग इज लाइक इट बीइंग पॉजिटिव, टू स्टे योरसेल्फ पॉजिटिव, यू हैव टू पुट लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क. Hmm. ठीक है, नेगेटिव सोचना बहुत ईजी है. Hmm. 1 मिनट में आप नेगेटिव बन जाते हैं. ठीक है, पॉजिटिव बनने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल. थोड़ा एफर्ट लगता है. बिल्कुल. तो जो लोग हैं जो नेगेटिव है, वो सोच रहे हैं कि यार मैं पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रहे, तो वो एफर्ट की कमी है. Hmm. 1 दिन में 2 दिन में आप पॉजिटिव नहीं बनता. आपको Hmm. 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कभी कभार 20 दिन, 40 दिन भी लगता है. तो 40 दिन आपको परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, Hmm. चारों चीज आपको कंटिन्यूसली रखना चाहिए. बिल्कुल सर, नेगेटिविटी रिमूव करना, लाइफ से टॉक्सिसिटी रिमूव करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आई बिलीव. And then it's one of the some of the sometimes it is one of the toughest things also to do. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. बहुत टफ होता है बिकॉज इट्स लाइक यू स्टक टू इट, बट देन यू Yes. हैव टू लेट गो ऑफ इट बिकॉज यू नो Let इट इज go. गुड फॉर यू. And you have to replace it with a positive thought. There are two एग्जैक्टली. things. One is you to stop thinking about that. या. You not only have to stop it, you have to remove it, let it off, and then third thing is you have to replace it with a good positive thought. So it requires effort. एग्जैक्टली, एंड आई ऑल्सो रेड समवेयर कि टू रिमूव, लाइक कभी कभी जब सिचुएशन ज्यादा नेगेटिव होती थी, सो यू टर्न टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड लाइक नेटफ्लिक्स Yes. शोज टू ब्लॉक आउट देम. सो लाइक कोई ऐसी गो टू प्लेलिस्ट या कुछ ऐसे बिंज वर्दी मैं शो मैं जो मैं आपने बता रहा देखे? हूँ, some of my icons are all like fictitious characters, like जैसे अच्छा. रॉकी बल्बोआ है. हाँ. रॉकी is a movie, it's a movie series in which या. there is a boxing champion. या. तो रॉकी में उसमें हमेशा एक चीज वो बोलते हैं कि कुछ भी हो जिंदगी में, कुछ भी हमें somebody hits you, no matter how hard you get hit, हम्म. गिर जाए आपको उठना है. हाँ. तो वो हमेशा में अपने आप को बोलते थे. दूसरा एक हम्म. जॉन विक था. जॉन विक में हमेशा वो बोलते थे फोकस, कमिटमेंट एंड शेयर विल. या. दूसरा एक लिविंग लाइफ कैरेक्टर है मोहम्मद अली एलियस कैशियस क्ले. हम्म. वो जिंदगी में सबसे प्राइम पॉइंट में थे व्हेन ही वाज द हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड. हम्म. He was stripped of his championship because he didn't follow the directions given to him by the authorities. हम्म. और उसको एक्चुअली उसके जब प्राइम में थे, he was not able to perform because his हम्म. license were taken away. But हम्म. he continued his practice, he continued to believe in himself, and finally at the age of 28, 29, after a gap of long 6 years, he came back as a हम्म. heavyweight champion, and he is considered as the greatest in boxing. ऑफ कोर्स, ऑफ So कोर्स. these stories actually motivated me. There were some songs also. तो गाना ऐसा चलाते थे कि जैसे मतलब वो एक पंप फीलिंग आ जाए कि मतलब कैसा थक जाते हैं तो वो गाना सुनने के बाद ऐसा यार भागना है. So हम्म. those type of put songs I put. My playlist were filled with such types of songs. So those also helped me a lot, I would say. तो अपनी प्लेलिस्ट का कुछ दो तीन सॉन्ग्स अगर आप मुझे बताना चाहें तो? तो सबसे पहले होता है कि मतलब इमेजिन ड्रैगन्स का है. हम्म. इमेजिन ड्रैगन्स का गाना है. फिर हम्म. हमारा कह रहा है मलयालम में भी है, रन करके हम्म. एक मूवी है, रणम रणम रणम. हम्म. देन कोचुनी. देन हिंदी, हिंदी आई यूज्ड टू पुट दम. हम्म. दम वाज देयर. फिर बाग मिल्खा बाग. हम्म. एंड ये जो लगान का बार बार हम. एंड हाँ. देन तेलुगु देयर वर लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स. हम्म. तेलुगु में यू हैड सॉन्ग्स ऑफ दिस गाय, कौन सा, RRR. हम्म. RRR का सॉन्ग्स थे. ठीक है, हाँ. मतलब नोट नाटू नाटू, द अदर हाँ. वन भीमा कुमरम भीमुडू सॉन्ग्स एंड ऑल. हम्म. फिर तेलुगु में और भी है. देयर इज ए पवन कल्याण का बहुत सारे सॉन्ग्स है. ओके. Tamil also there are a lot of songs. So whatever happens, like when you start hearing these songs on YouTube, will automatically suggest some songs. या, ट्रू ट्रू. फिर वो आपकी उर्दू लिस्ट इज में लाइक बन दैट. जाता है. So my playlist is one of the most viewed playlist in YouTube. मेरा अच्छा. playlist YouTube में नितिन वल्सन playlist जो है हम्म. मोटिवेशन, it has got close to 7,000 8,000 views. ओह अच्छा. ओके.
So that is one of the most viewed playlists also, because I think it is a mix of all types of songs and all languages. Yeah. सारे languages. So because the music is pumping music है ना, जो pump करने वाला music है वो follow हाँ, वे उसमें ज्यादा जो आपको एकदम ऐसे मोटिवेट करते कि बस अब कुछ मोटिवेट तो करता है. करके दिखाना है. Yes, yes, that type of things. Yes, yes. राइट. एंड नाउ कमिंग टू योर बुक सर, आपने बुक लिखी है विच इज ऑल्सो नेशनल बेस्ट सेलर, कैंसर मैन टू आयरन मैन. तो कोई ऐसी उस बुक में आपने कुछ ऐसी पर्सनल स्टोरी डाली हो जो आप बिलीव करते हो कि एग्जैक्टली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है उसके एसेंस को अच्छी तरह से कैप्चर किया हो स्टोरी ने, सम मोमेंट फ्रॉम योर लाइफ दैट यू हैव इंस्टिल्ड इन द बुक ऑल्सो. There are a lot of instances. ठीक हम्म. है. One instance which I would say was when I was preparing for Ironman. तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊंगा. ठीक है. मैं एक्चुअली बहुत डाउट था मुझे, हम्म. क्योंकि मतलब बिकॉज जब तक आयरनमैन नहीं करता हमें कभी भी पूरा आयरनमैन करने का मौका नहीं मिलता. बिल्कुल. ठीक है. द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग विच यू डू इज फॉर 6 hours, बट इन हम्म. रियल आयरनमैन द लॉन्गेस्ट इज अबाउट 8 hours. हम्म. ठीक है. तो मुझे हमेशा डाउट होता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. और मेरा एक्चुअली स्विमिंग वाज आई वाज वेरी वीक. आई वाज अ स्लो स्विमर. हम्म. एंड आयरनमैन में एक्चुअली स्विमिंग में यू हैव टू डू इन द सी एंड यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट. या. एक्चुअली 100 मीटर्स को आपको 3 मिनट में कंटिन्यू कंप्लीट करना चाहिए. उस हम्म. स्पीड में यू हैव टू स्विम फॉर 2 किलोमीटर्स. हम्म. 50 मीटर स्विमिंग पूल में 3 मिनट में आपको इधर भी जाना है वापस भी आना है. हम्म. उस स्पीड में आपको 2 किलोमीटर करना है और आपके साथ 1400 लोग भी स्विम कर रहे हैं. हम्म. उसके बीच में आपको स्विमिंग करके निकलना है. हम्म. सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. फिर उस बीच में मुझे क्या हुआ कि मेरा आंखों में कंजंक्टिवाइटिस भी हो गया. ओह नो. तो कंजंक्टिवाइटिस मेरा वायरल कंजंक्टिवाइटिस होगा. वायरल कंजंक्टिवाइटिस से 1 महीना में समुद्र में नहीं जा पाया, हम्म. स्विमिंग पूल में नहीं जा पाया. तो मेरा स्विमिंग भी मतलब आई वाज वरीड कि यार ये होगा कि नहीं होगा. फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट भी किया. डॉक्टर ने मुझे बोला था रेस्ट करो. फिर भी मैं कंजंक्टिवाइटिस लेके फिर मैं स्विमिंग रनिंग भी करते थे, साइकिलिंग भी करते थे. तो हम्म. स्विमिंग ना होके रनिंग और साइकिलिंग करने से मेरा बॉडी में भी दर्द होना शुरू हुआ. हम्म. At this point of time, I doubted whether I will be able to do it. And this या. is in September or something, और नवंबर में Ironman. या. तो मुझे काफी डाउट हो रहा था यार मैं कर पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. तो सबसे बड़ा टेंशन था स्विमिंग का. तो फिर एक दिन क्या हुआ कि एक वर्कआउट थे स्विमिंग का, तो देखने का कि 2 किलोमीटर कितने टाइम में एक एक बंदा आता है. हम्म. संडे का वर्कआउट था. तो मुझे बोला, मैं उनसे डिसाइड किया कि मैं ये वर्कआउट करूंगा, हम्म. क्योंकि मुझे पता चलेगा मैं कहाँ पे स्टैंड करूँ. तो उसी टाइम मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि हम गोकर्णा जाते हैं और गोकर्णा में हम मंदिर के दर्शन करेंगे, हम भगवान हम्म. के दर्शन. तो मैंने बोले यार दर्शन दर्शन तो बात की बात है, पहले मैं वर्कआउट करूंगा, आप दूसरा दिन छोड़ दूंगा तब तक हम्म. करेंगे. ठीक है. देन आई वी शी टॉक टू द पुजारी. तो पुजारी ने बोला सर मैं सर आपको संडे ही आना है, आपका वहाँ पे हमने पूजा करने का अरेंजमेंट किया है. ठीक है. पेमेंट भी होता है, तो उसको आपको पूजा पेमेंट करने के बाद आपको पूजा वहाँ पे पूजा पूरा अरेंजमेंट किया है. तो अब इसमें मेरे और वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ कि यार शी वॉज इंसिस्टिंग कि मंदिर जाना है, मैं आई हम्म. वॉज इंसिस्टिंग कि वर्कआउट करना है. एट द एंड ऑफ द डे आई थॉट लाइक चलो मंदिर चलते हैं, भगवान से तो प्रार्थना करें. फिर वहां पे गया गोकर्णा में. दर्शन करने के बाद ये जो मेरे फ्रेंड है शर्मा जी है, हम्म. पुजारी है, इसने एक्चुअली एक घर में अलग से पूजा रखा था. हम्म. ये 3-4 घंटे का इट वॉज लाइक एन यज्ञ. इट हम्म. लाइक पूजा. इसमें बहुत सारे हम सारे भगवानों को बुलाते हैं. विष्णु हम्म. भगवान को, शिव जी को, हनुमान जी को, दुर्गा हम्म. जी को, सारे हम्म. भगवानों को बुलाते हैं. और वो सेंटर में एक वो होते हैं आग, आग का क्या बोलते हैं उसको, वो अमन. दैट हवन होता है. तो उसमें हम्म. इट वॉज अ 3 3 hour लॉन्ग यज्ञ. हम्म. ठीक है. तो एंड इन दैट एंटायर यज्ञ आई वाज जस्ट प्रेइंग कि भगवान मुझे आयरन मैन बना. हम्म. ठीक है. मैं सब एक एक भगवान को हम ये कर रहे हैं, मतलब हम्म. विष्णु भगवान, अश्विनी देवा, ब्रह्म जी, मतलब जो भी हो, मतलब सारे बहुत सारे भगवानों का नाम ले रहे थे. सबको मैं ये बोल रहा था कि मुझे ये चाहिए. और ये करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे वो ब्लेसिंग्स मिल गया. आई गॉट दैट पावर टू डू इट. हम्म. उस दिन मैंने वर्कआउट तो मिस किया, लेकिन नेक्स्ट वीक में मेरा सबसे लंबा जो वर्कआउट था 6 घंटे का, मैंने आराम से कर दिया. ओह वाओ. एंड आई फेल्ट दैट पूजा गेव मी द स्ट्रेंथ. या. I have written in my book also, हम्म.
people might not believe or don't believe, but I think there are a lot of things which are beyond scientific explanation, which you have to Absolutely. only experience. You Absolutely. can't put out in paper or you can't explain in words. So there are some things in the life which you have to experience yourself, and that was a great experience which I had. फिर उसके बाद तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं करूंगा, Hmm. और उसके बाद तो मैंने करके भी दिखाया. Hmm. So this is something which I cherish. Exactly. There is definitely another power out there. I also believe in it. जो no matter what कोई कितना atheist हो, कोई कितना भी कुछ बोले, but there is something out there and they have your back no matter what. इसीलिए लोग इतनी difficult चीजों से निकल पाते हैं. You know, cancer जैसी चीज को आप fight कर पाए, touch wood, you bounced back, you wrote your book. So, I mean, there is definitely something out there is what I believe. हाँ Yeah. जी. एंड सो जैसे बुक का जैसे आपने बताया कि बुक यू वांटेड टू लाइक शेयर योर स्टोरी विद द वर्ल्ड आउट देयर, तो ये बुक आपने कब लिखना एग्जैक्टली शुरू करी? हाँ, मैं इसलिए मैम, ये जो बुक है, मैं एक्चुअली मैं जब ट्रीटमेंट कर रहा था, तो हम्म. व्हेन आई स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वाज अनअवेयर ऑफ. हम्म. जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तब मेरे रिलेटिव्स को पता चला, थोड़ा सा फ्रेंड्स को पता चला. इनिशियली मैं लोगों को बोलता नहीं था, फिर भी लोगों को पता चल जाता है हम्म. कि उसका ये काफी दिनों से घर पे है, नौकरी नहीं है हम्म. क्या. ऐसा हम्म. सवाल ववाल तो होता है ना, यार ये क्यों हाँ. घर पे घूम रहे हैं, ये तो यार गोवा में पोस्टेड थे, ये केरला में क्या कर रहे हैं, ऑल हाँ. दोस थिंग्स. सो देन दे फाउंड आउट, देन दे कॉल यू एंड दे से लाइक, आपने इस डॉक्टर के पास क्यों गया, आपको ये करना था, हम्म. तो उस बाबा के साथ जाना था, उस आदमी के पास जाना था, उसके पास कैंसर की एक यूनिक दवाई है, आप उसको हम्म. ट्राई करो. हम्म. ठीक. वो कई दूर से किसी दूसरे कोई मतलब ऐसा है कि उसको रात को नींद में आ गया हम्म. कि भगवान ने आगे उनको बोला है कि ये कैंसर की दवाई है. ऐसा हम्म. करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया. फिर कीमोथेरेपी में भी बहुत सारा मुश्किलें मुझे फेस करना पड़ा. तो हम्म. मुझे जो हेल्प किया था, जो मेरा जो फ्रेंड्स थे, दो तीन फ्रेंड्स थे जो कैंसर से निकल के आए थे, तो उन्होंने हम्म. मुझे जो सपोर्ट दिया था, उन्होंने मुझे बहुत सारा एडवाइस दिया था. बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. हम्म. तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगा. हम्म. ट्रीटमेंट में मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को मिला भी. तो मैं सोचा यार, ये एक्चुअली व्हाई कांट आई शेयर दिस एक्सपीरियंसेस. हम्म. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग. हम्म. फिर एक सिचुएशन हो गया कि लाइफ में आई फेल्ट सो मिसरेबल दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग. हम्म. ने बोला ना कि हमेशा ये नहीं होता कि पॉजिटिव रह सकते हो. बीच में मुझे एक थोड़ा सा एक सिचुएशन हो कि मैंने वो पॉजिटिविटी भी छोड़ दी थी. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज लाइक, सो मैंने सोचा कि मैं शुरू कर देता. फिर बीच में एक ऐसा सिचुएशन हो कि मैंने छोड़ दिया वो लिखना. हम्म. ठीक है. फिर बाद में जब ये आयरन मैन की तैयारी शुरू हुआ, तो मेरे हम्म. माइंड में एक ये टाइटल आ गया, हम्म. कैंसर टू आयरन मैन, कैंसर मैन टू आयरन मैन. हम्म. ये बढ़िया है यार, ये अगर मैं लिख देता. तो आई स्टार्टेड राइटिंग एवरी डे. हाँ. नौकरी जाने के 10 बजे जाने के पहले 9:45 को बैठते थे, और हम्म. 2-3 पेज, हम्म. मैक्सिमम 3 पेजेस, हम्म. आई स्टार्टेड राइटिंग. हम्म. अच्छा, मैं लिख के जब मैंने आयरन मैन कंप्लीट किया, आयरन मैन कंप्लीट किया नवंबर में, और जनवरी फरवरी फरवरी 2024 में मैंने कंप्लीट किया. तो इट इज़ अ हम्म. हैंड रिटन स्टोरी. ओके. ठीक है, अपने हाथ से मैंने लिखा. देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग लेटर दिस बुक्स एंड ऑल. सो इनिशियली आई डिडंट गेट मच ऑफ अ रिस्पॉन्स. फिर मैं भगवान के पास गया. अयप्पा करके हमारा एक भगवान है शबरीमला में. मैं वहाँ पे जाके भगवान को मैंने बोला, मेरे स्टोरी अगर आपको ठीक लगे तो उसको पब्लिश करा दो. तो हम्म. मेरे साथ एक बैचमेट भी थे, रविशंकर शुक्ला करके, झारखंड कैडर का था. वो भी भगवान को मिलने के लिए आया था. तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया अक्षया करके एक फ्रेंड से. हम्म. अक्षया ने फिर पैन मैकमिलन से बात की. तो पैन मैकमिलन को मैंने अपना स्टोरी भेजा. सो दे फेल्ट इट गुड एंड दे डिसाइडेड कि वी विल पब्लिश इट. सो That, दैट इज दिस केम टू that's मुझे. great, sir. क्या. तो आई थिंक यहीं से आपकी जो जैसे अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि अब मैं आयरन मैन वगैरह की प्रिपरेशन तो नहीं, बट मैं मोर इनटू स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बट अवेकनिंग स्पिरिचुअल तो और वह भी योगा है, मतलब मेडिटेशन. आई हैव स्टॉप्ड, मतलब आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम हेवी एंड्योरेंस ट्रेनिंग. या. And I am more into because yoga and सूर्य नमस्कार. तो एक्चुअली एक तो ये भी है कि आई वांटेड टू डाइवर्सिफाई माई सेल्फ एंड आई वांटेड टू ट्राई दिस ऑल्सो. एंड दूसरा ये, दिस इज कंफर्टेबल ऑल्सो टू डू इट. या. घर पे भी आप कर सकते हो. ठीक हम्म. है. तो उस टाइम में वर्कआउट में क्या होता है कि आपको गाड़ी लेके कहीं जाना पड़ेगा, कहीं इसमें, हम्म. ये कभी भी कहीं भी घर पे कर सकते हैं. हम्म. तो कंपेयर टू द वर्क टाइमिंग्स इन दिल्ली, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. सो इसलिए या. मैंने इस shift किया.
So now you're into yoga and meditation more Yeah, than again, heavy yes, lifting training. basically concentrating on Surya Namaskars. Okay, okay, that's great, sir. And my concluding question to you would be कि for those जो अभी भी कैंसर जैसे बीमारी से डील कर रहे हैं उन कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना जो आपको जैसे पता चले कि आपको कैंसर है आप अंदर से इतना घबरा जाते हो कि फिर आपको बाहर से भी इतना मोटिवेशन नहीं आता है कुछ करने का। तो अभी जो कैंसर को बैटल कर रहे हैं लोग कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल पीस ऑफ एडवाइस हो जो आप उनको देना चाहें जो आपने खुद के टाइम पे जब आप उससे गुजर रहे थे तो इस एडवाइस को लिया हुआ था और वो आपको लगा था कि आपके लिए बेनिफिशियल था। तो अगर आप किसी को देना चाहें तो वो क्या एडवाइस होगा? आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस रेदर देन एज एन या एडवाइस। ठीक है, जब मैं ओके। मुझे मेरा डायग्नोसिस चल रहा था, हुँ, आई हैड टू अंडरगो ए पेट स्कैन। पेट स्कैन हुँ, में ये पता चल जाता है कि आपकी कैंसर की स्टेज कितना है। हुँ, तो मैं पेट स्कैन के लिए एंटर करने वाला था, मुझे पता नहीं था कि मैं स्टेज 4 कैंसर है मेरे, लेकिन हुँ, मुझे पता था कि बायोप्सी में ये कंफर्म आ गया कि कैंसर था। तो नाउ आई हैव टू हुँ, सी व्हाट स्टेज इट वाज। हुँ, तो मैं पेट स्कैन के लिए अंदर जाने वाला था, तो मैं बाहर वेट कर रहा था। एक दिन में 5-6 लोग इस पेट स्कैन करते हैं, उसमें हुँ, रेडियो एक्टिव आइटम्स होते हैं, तो इसलिए 5-6 लोग ही कर पाते हैं। हुँ, तो मैं बाहर वेट कर रहा था मेरा टर्न के लिए, तो वन पर्सन वेंट इनसाइड। तो उनके जो वाइफ थे वो बाहर वेट कर रहे थे, तो मैं उनसे आई जस्ट स्टार्टेड ए कॉन्वर्सेशन विद, शी वाज हुँ, एन ओल्ड लेडी। तो मैंने उनसे ऐसी बातें बातें बात किया, तो बोल रहा था कि सर मेरे हस्बैंड जो है 7 फुट हाइट का था, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बिल्ट, एंड अचानक ही स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड ही स्टार्टेड हैविंग पेन। फिर बाद में पता चला ये स्टमक कैंसर। हुँ, तो ही हैड कम टू चेक वेदर इट हैज क्योर्ड और समथिंग, वो चेक। ठीक है। तो फिर मुझे बोला, मुझे पूछा बेटा तुम्हारा क्या है, तो मैंने बोला कि सर मुझे पता नहीं है, लिम्फोमा, नॉन hodgkin लिम्फोमा टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, वो चेक करने के लिए आया है कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है। तो उस लेडी ने मुझे एक एडवाइस दी, उसने मुझे ये बताया कि बेटा हमेशा एक याद रखना कि कैंसर की जो फाइट है ना वो इधर से होता है, हुँ, माइंड से होता है। अगर हुँ, तुमने माइंड से इसको अगर डिफीट कर दिया ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी उसको हरा देंगे। अगर हुँ, एक मोमेंट में भी तुमने अगर इसको हार मान लिया ना, यू मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो इफ यू एवर थिंक दैट यू आर गोइंग टू गिव अप, हुँ, कैंसर विल ईट यू, या कैंसर विल फिनिश यू। तो हमेशा हमेशा कैंसर हो, जिंदगी में कुछ भी मुश्किलें हों, ठीक है, नेवर एवर एवर गिव अप। हुँ, Just be strong, be patient, maintain relationships, fill your life with positivity. You can come out with beautiful and wonderful colors. exactly, sir. Absolutely. And with that, we come to the end of a very, very beautiful conversation. It Thank was you. indeed a delightful experience. आपसे ऐसे बात करना. It was my pleasure, entirely my pleasure. Thank Yes. you. It was nice Thank talking you. to you. What a journey, what a story. IPS officer Nitin Wilson's triumph over cancer and his Ironman feat remind us all of the power of resilience and inner strength. If his story moved you, inspired you, or made you rethink what's possible, don't keep it to yourself. Like, share, and comment below with your thoughts. And for more inspiring stories like this one, make sure to subscribe to Indian Masterminds on YouTube. This is Bhakti Kothari signing off. Join us as we continue to bring these stories of remarkable change makers across India.